Esteemed guests and fellow students, on behalf of GD Goenka Public School Vasant Kunj, it's my pleasure to extend a warm welcome to each one of you gathered here today. Let's embark on this journey together with excitement and anticipation, ready to embrace the enriching experiences awaiting us. To invoke the blessings of Lord Ganesh, the god of knowledge and wisdom, I now invite Principal Ma'am and other dignitaries to kindly join us for the traditional lighting of the lamp. Together in harmony and unity to celebrate the spirit of togetherness. I now invite our talented choir group to grace us with a soul-stirring, self-composed welcome song, filling our hearts with joy and inspiration. Welcome, welcome everyone to our annual day of fun. Parents, families gather near to celebrate. Let's give a cheer. Welcome, welcome one and all to a school where memories call. We're glad you're here, so let's start the show with laughter, joy, and hearts aglow. Together we'll sing, dance, and play on this special day, come what may. Thank you for being here with us. Memories are here to stay. Welcome, welcome one and all to a school where memories call. We're glad you're here, so let's start the show with laughter, joy, and hearts aglow. With laughter, joy, and hearts aglow. With laughter, joy, and hearts aglow. Beat it, beat it, beat it. They told him, don't you ever give around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their words are very clear. So beat it, just beat it. You better, don't wanna see your face, don't be like a man. You wanna be just better, you can't. So beat it, but you wanna be there.
depths of the digital world. I had enough of these gadgets. This AI is all noise, no wisdom at all. I think I need something deeper, something timeless. I might be in a bookstore. Oh yes, I can. Maybe I can find something better than this. Let's go. Excuse me. Yes, sir. What is the price of this book? Sir, this one? Yes. Sir, this one is for 450. 450. Okay, thanks. What is the price of this book? This one. Sir, this one is for 150. I'm sorry. This one? No. This one? Yes. 450, sir. I will start it. Please come in, sir. Sir, wants to buy this one. Okay. Sir, 500. Thank you. Hello, ma'am. Hello, sir. Ma'am, I am stressed. Can you recommend me a good book which can relax my mind? Yes, sir. Please wait a minute. Get the book from the window. Okay. Mythology. Always a good one. Sir, this is a very good book. I recommend it. After reading this, you will be mesmerized. 500, sir. I also think it's a good book. I'm ready to buy it. Thank you very much, sir. Truth? My truth? Your truth. People over the world, reach out your hands, touch one another. People over the world, just understand I love each other. We have one life to live, so much to give, and so much to share. There is love to be found. Just look around. There's happiness there. In the rhythm of life, let love be our guide. A force that transcends your hearts coincide. In the symphony of souls that are love reside. A melody of passion where fears subside. From the beats of the streets to the stars above. Love's language we speak, the ultimate goal. In every verse and every rhyme, as a whole. The message is clear. There's love in every soul. People over the world, we are the same, with different colors. People over the world, love without change, like sisters and brothers. Face each day with a smile, and in a while, that sunshine appears. You feel the warmth deep inside. No need to hide from danger and fear. People over the Karsh, are you ready? Yes, Dad.
Dad, could I get 500 rupees from my school? For what? Canteen and stationery. What to buy for stationery? Pencils, erasers, and the bike net. Thank you, Dad. I want 100 rupees back. Dad, I also need it for canteen. No. Dad, please. No. Dad, you do this every time. No. Dad, please. Utkarsh? 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 Yes, Dad. Why don't you read this book? The book tells us about the Vedas and the Upanishads. Vedas and Upanishads. What do you want to play? Dad, give it back to me. No. Dad, give my tab back. No. Dad, just give it back. First read the book. I can't read this. It's in Sanskrit. You don't know Sanskrit? Yes. But you know, the most ancient language on this earth is Sanskrit. Dad, I hear what you're saying, but I have tried learning Sanskrit before and it just doesn't click with me. I find it difficult and not very relevant. I hear what you're saying, sir. But learning Sanskrit isn't just about immediate practicality, but the most rewarding things in life requires efforts and perseverance. Come, let me take you to Ghats of Manas and let's visit Sanand. There we can witness the beautiful shrines, the ancient temples, and the serenity of the place. It might help you see the value of learning Sanskrit. And what about Vedas and Upanishads? पापा ये वेद पुराण उपनिषद कोई रिलेवेंस नहीं इनका. I just don't get it. Utkarsh, what are these words? Whatever my father gave me, I am just trying to deliver everything to you. I am still proud of my heritage. See, I'm still not convinced for what you said about Sanskrit, but I think let's go. Fine, I thought that you open experience. I'm excited for a trip. But remember, it's not just about learning a language, but its connection with our roots. So Dad, what hotel are we exactly going to stay in? Should I start booking rooms? Oh, I want the best rooms. Who's gonna pay for it? You. No. Dad, please. No. Dad, this one. Dad, please. Dad. No. Dad, please, this one.
नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाय। यदि मैं बात करूं उपनिषद की, तो उपनिषद जो देख रहा है उसकी बात नहीं करता, जो दिखाई दे रहा है उसकी बात करता है। बाहर की जगत की नहीं, भीतर की जगत की बात करता है। तो इसीलिए भीतर को जाने बगैर मनुष्य के शोक, भ्रम और दुख का कोई अंत नहीं है। तो उपनिषद क्या उत्तर देता है गुरुजी? उपनिषद मनुष्य की खोज का उत्तर है, और अगर आपको भी खोज करनी हो तो उपनिषद एक अनिवार्य प्रश्न बन जाता है। जी गुरुजी समझ गया, लेकिन आप जानते हो you must know your inner self before knowing anything else. But the question is, do you really know yourself? जी This place is so pretty, isn't it? But do I know how to get to the famous Kashi Vishwanath temple? I should ask someone. Excuse me, ma'am. Could you please tell me how to get to the famous Kashi Vishwanath temple? Oh, sure. Welcome to Banaras, madam. तो पहले राइट लो, फिर लेफ्ट लो, फिर सीधा जाना, फिर यू टर्न लेना, फिर हाईवे क्रॉस करना, और उसके बाद खो जाना. To get lost? No. We came here to explore, not to get lost. Oh, don't worry, my friend. Banaras आगे खो जाए तो आगे खूबसूरती है. Trust me, you'll discover so many hidden gems. Well, I suppose getting lost can be an adventure, but can you at least give me some landmarks to look out for? Of course. Look out for a cow wearing sunglasses, and a monkey with a selfie stick, and the auto rickshaw driver singing Bollywood songs. You can't miss them. A cow with sunglasses? A monkey with a selfie stick? This place sounds fascinatingly unique. That's Banaras for you, my friend. We like to keep things interesting. If you're lucky, you might even stumble upon a street performance by a group of classical musicians playing on a board. Wow, that sounds incredible. I'm definitely up for some unexpected musical adventures. By the way, what's the best time to visit the temple? Madam जी, आप ना टेम्पल कभी विजिट कर सकते हैं, पर अगर आपको बनारस का ट्रू वाला एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो सुबह मंगल आरती के समय जाइएगा। वह ब्यूटीफुल साइट होता है। I can't wait to witness the morning aarti and soak in the spiritual atmosphere of Banaras. You're in for a treat, my friend. Just make sure to carry some extra enthusiasm, because Banaras loves to dance and celebrate. Enthusiasm? I'll bring my
आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भूख लग रही है। हाँ? क्या खाना है तुम्हें? मुझे नहीं बड़ी पापड़ी चाट खानी है। चटक से चाटा भी पड़ सकता है, ये भी मालूम है ना? आइए बनारस की खस्ता कचौड़ी। आइए बनारस की खस्ता कचौड़ी। तू भी चले चला। पहले गंगा आरती। तुम्हें समझ नहीं आता गंगा आरती? मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ मुझे तो भजन करने की। ये भैया सबसे कम दम की और ज्यादा मिर्ची मत डालना, तुम खा नहीं पाओगी। भैया पैसे भैया काटे। मैडम आपकी बिटिया ने पूरी बॉटल मिर्ची की डलवाई है। भैया इतना चाहिए कि नहीं? आइए मिर्ची। और ना खाओ एक टेस्टिंग के लिए हमको दे। मैडम 10 रुपए आपकी बिटिया कॉल लेके गई है। भैया नहीं अभी नहीं। आज नहीं एक फोटो खींची करो। नई साड़ी के साथ नई साड़ी लेकिन ऐसे नई साड़ी देखिए नई साड़ी जी। पोज बताइए कुछ पोज ऐसे नई साड़ी के साथ। हाँ। नई साड़ी। मम्मी मेरी फोटो। एक्सक्यूज मी बैठ कीजिए। दीदी ऐसे नहीं हो सकता। दीदी ऐसे नहीं होता। देखिए हमारे फोन में टाइम सही दिखाए। फोन का टाइम देख के हम बता रहे हैं गंगा आरती खत्म हो गई है। ऐसे नहीं हो सकता। जाने दो शाम की गंगा आरती खत्म हो गई। तुम्हें ना सारी चाट पापड़ी किधर आओ। ठीक है घूमो सारी चाट खा सारी पापड़ियाँ खाओ मैं जा रही हूँ। Come,
Now I'll show you the Great Indian Theatre. The Great Indian Theatre? What's that? आप जानते हैं हमारे भीतर एक व्यक्ति छुपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता पर वो दृश्य विराट खुद को अपनी व्यक्त करने के लिए लड़ रहा है, शांति पाने के लिए लड़ रहा है, मनुष्य बनाने के लिए लड़ रहा है, सारे बंधनों को तोड़ने के लिए लड़ रहा है। तो आइए देखते हैं कि उसकी अंति किस प्रकार से होगी। Amidst the chaos of the battlefield, Arjun and Lord Krishna stand together, their chariot positioned at the center. Arjun is filled with doubt and anguish, his bow gripped tightly in his hands. कृष्णा, मेरे मन और अंतरात्मा व्याकुल है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस प्रकार युद्ध करूं। ये सब मेरे लिए गलत लग रहा है। क्या करूं मैं? अर्जुन, समय अनुभवों का सक्रियकरण है। तुम एक योद्धा हो, लेकिन मुझे तेरे मन की व्याकुलता का अंदाजा है। युद्ध के समय अपने कर्तव्य के प्रति विश्वास रखना जरूरी है। पर ये युद्ध मेरे अपने बंधु बांधव को खोकर मेरे हृदय को व्यथित कर रहा है। क्या मैं उनको मारने के लिए ही युद्ध करूं? अर्जुन, जीवन एक अनंत है, शरीर सिर्फ एक आवास है। आत्मा अमर है और उसके लिए युद्ध के बाद जीवन है। शरीर सिर्फ एक वाहन है जिसके माध्यम से आत्मा कर्तव्य को पूरा करती है। तुम्हारे बंधु बांधव इस शरीर से परे हैं और उनकी आत्मा अमर है। पर मुझे भय है कृष्णा, भय कि मुझे पराजय हो जाएंगी या मैं गलत निर्णय लूंगा। अर्जुन, वह मोह का ही रूप है। अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने मन को शांत करो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। तुम्हारे पास दिव्य सहयोग है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद कृष्णा, मैं हमेशा तेरे मार्ग पर चलूंगा अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। अर्जुन, तू मेरा प्रिय साथी है। अब युद्ध कर, धर्म का पालन कर। जगत तेरे कर्तव्य से प्रेरणा लेगा।
Pranam Guruji. Guruji, what do we unlock while reading Upanishads? Shishya, as we delve deeper into the Upanishad, we unlock the profound wisdom embedded within. What does Upanishads hold? The Upanishads hold the essence of eternal truths and principles that govern the universe. It is our duty to pass on this timeless wisdom to our future generations. Let us work together to preserve, interpret, and disseminate the Upanishads in a way that resonates with the seekers of tomorrow. So, did you enjoy your trip, Utkarsh? Yes, Dad. लेकिन मम्मा भी होती तो कितना अच्छा रहता. But she had to go urgently for her office work. Next time with Mama, please, Dad. Sure, Utkarsh. Dad, but how come is it named Varanasi? You know, there are two rivers, Vara and Asi. It's so simple. That's why it's named Varanasi. But, you know, our life is a journey. It is flowing beautifully like River Ganga. So our ancient wisdom. Whenever in life you feel lost, you can come here and delve deeper into Vedas and Upanishads. That's why we say India is not just a country, it's an experience. भारत एक अनुभव है. आ बेटा, माँ गंगा के दर्शन करें. जी पापा.
Let's give a resounding round of applause to our talented performers for their outstanding dedication and captivating performances. Their commitment has truly brought the stage to life, leaving us inspired and thoroughly entertained. I would now like to invite our respectable principal ma'am to share her words of wisdom and inspiration with us. सच बताऊं बच्चों, तो आप लोगों ने मुझे इंस्पायर किया है. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ देम. आई बीन अ स्टेज आर्टिस्ट, सो आई नो बिना ड्रेस रिहर्सल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, और वो भी बैक टू बैक 2 देना. और पहले सेट ऑफ पेरेंट्स ने इन बच्चों को आराम भी नहीं करने दिया. They wanted to meet them, and the next ones were waiting outside. We just moved in, and I was just telling them, I said, कम से कम स्टेज पे झाड़ू तो लगा देते. So they said, नहीं, पेरेंट्स आ गए, क्या करते. So awesome बेटा, awesome. सचमुच में भारत एक अनुभव है, और आज हमने केवल एक शहर का अनुभव किया है, बनारस का. अगली बार देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं. तिरुपति भी जाना पड़ेगा, जगन्नाथपुरी भी जाना पड़ेगा, द्वारकानाथ भी जाना पड़ेगा, सब जगह जाना पड़ेगा. बहुत खूबसूरत. अगर हमें अपने देश को जानना है, अपने आप को जानना है. बहुत अच्छी बात कही थी बिल्कुल शुरुआत में आपने, कि हमें अल्टीमेटली अपने आप को जानना है. वी नीड टू नो आवरसेल्व्स, एंड द जर्नी हैज़ टू बी इनवर्ड्स. कहीं और है ही नहीं आंसर, सारे आंसर्स अपने भीतर हैं. जब कृष्ण बात कर रहे थे अर्जुन से, और अर्जुन के बहुत डाउट्स थे, कृष्ण ने केवल दर्पण दिखाया था. आंसर ढूंढने का एक ही तरीका समझाया था. गीता, जो हम बार बार कहते हैं, किसी को भी कुछ भी आंसर्स लाइफ के चाहिए तो गीता पढ़िए, क्योंकि गीता स्वयं प्रभु के मुंह से निकले हुए वचन हैं. सो एक जो बिल्कुल सार निकल के गीता का आता है, तो वो ये आता है कि सबसे पहले हम अपने आप को जाने, अपनी आइडेंटिटी को जाने. हम इतने मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं. एक को, जिसको अगर धुरी को अपने जान लेंगे, अपने अंदर का सूक्ष्म रूप को जान लेंगे, जिससे कि सब चीज़ की उत्पत्ति होती है, तो आसान हो जाएगा सारे डिसीजंस लेना. हमें क्या चीज़ किसी भी द्वंद्व की हालत में कैसे हमें डिसाइड करना है पता चलता है अगर हम अपने आप को जान लें. मेरा प्राइम रोल क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस. सो आई मीन व्हाट बेटर वे. आई पर्सनली कनेक्ट अ लॉट विद शिवाज एनर्जी, एंड सही कहा कि वो एनर्जी है. उस जगह पे आप जाते हैं तो एक एनर्जी है. कहीं पे भी, कोई भी होली प्लेस वी गो टू, वेदर वी गो टू बेथलेहम, जेरूसलम, और वी कम हियर, यू नो, इट्स द एनर्जी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. होता क्या है कि एनर्जी को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर एक छोटे बच्चे को. तो हम कथाओं के रूप में, स्वरूप के रूप में पर्सोनिफाई करके वो चीज़ें बताते हैं छोटे बच्चों को. बहुत ज़रूरी है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो सभ्यता जाए, और उस रूप में जाए जिस रूप में वो बनी है. हमारी बहुत ज्ञान अवेलेबल है हमारी अपनी भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में, संस्कृत में, नॉट जस्ट संस्कृत, classic languages of Tamil and Telugu as well.
जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत पहले बनाई गई थी तो यही बनाया गया था कि थर्ड लैंग्वेज सिखाई जाए, जिसके अंदर आप कोई भी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज सीखें और अपने ज्ञान को प्राप्त करें। लेकिन हमने नहीं किया। बाहर के देश हमारे स्क्रिप्चर्स ले गए, हमारी भाषाएं सीखी, उन लोगों ने बहुत ज्ञान ले लिया, लेकिन हमने नहीं लिया। हमने तिरस्कार किया हमेशा। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब, क्योंकि मैंने बाहर बहुत ट्रैवल किया है तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा है ओवर लास्ट 2-3 डेकेड्स, कि पहले हम जाते थे तो इंडियंस की वैल्यू नहीं होती थी, अब जाते हैं तो रिस्पेक्ट होती है। तो बहुत अच्छे समय में हम जी रहे हैं जब हम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि हमको भी इज्जत मिलती है ग्लोबल स्पेस में। उसको आगे रखने का बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो एजुकेशन प्ले करती है। अगर हम अपना ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम देखें तो चाहे हम बुद्धिज़्म की बात करें, चाहे हम सनातन धर्म की बात करें, मतलब धर्म से मैं बात कर रही हूँ लेकिन धर्म में होता नहीं है, चाहे हम सिखिज़्म में बात करें, शस्त्र और शास्त्र दोनों इकट्ठे पढ़ाए जाते थे। पढ़ाई का मतलब कमज़ोर होना नहीं है। अंग्रेज़ों ने हमें सिखा दिया that if you're educated, you're sophisticated, you can't eat like this, you can't walk like that, I mean you can't be tough, you've got to be soft, you've got to be ladylike. Nonsense. रानी झांसी हूँ, उसकी धरती से आती हूँ, दुर्गा की धरती से आती हूँ। लेडी लाइक होने का मतलब कमज़ोर होना नहीं है, जेंटलमैन होने का मतलब चुप रहना नहीं है। बहुत ज़रूरी है हम ये बात समझें। हमारी सभ्यता ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट देती है जो केवल हमारी सभ्यता में नहीं है, वहाँ से जुडाइज्म में भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ हम फादर सन एंड द होली स्पिरिट की बात करते हैं, वही हम हमारे यहाँ पे ब्रह्मा महेश विष्णु की बात करते हैं। और यही कॉन्सेप्ट डिविनिटी का, ट्रिनिटी का हमारे गवर्नेंस में आता है। अगर अच्छी गवर्नेंस जो हमारे देश में एग्जिस्ट करती है, जहाँ हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी जो है, जो कि हमारी सभ्यता का मूल है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम समझ पाएँ, इसको इंटरनलाइज कर पाए हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। हमारा जन्म है, हमारा पालन पोषण है, भरण पोषण है, और फिर हमारी मृत्यु है। ये जो साइकिल है ब्रह्मा महेश विष्णु की, ये सब जगह चाहिए। हम क्या हैं? मैं एक गुरु को फॉलो करती हूँ, फाइनेंशियल मार्केट के गुरु को, और वो बहुत अच्छा बोलते हैं। ही इज़ एन इंडियन बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर। आई ओनली हर्ड हिम थ्रू पॉडकास्ट एंड हिज यूट्यूब वीडियोज़। अगर आप में से किसी ने सुना होगा तो आप जान जाएंगे। His name is Mr. Ajay Sharma, very big name in the financial world, knowledge wise. पढ़ते बहुत हैं, इंस्पायर बहुत करते हैं। तो एक सेंटेंस वो बोलते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हैं, वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को, वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को। अपने आप को जानने के लिए कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, मायोपिक व्यू नहीं, दूर से देखना पड़ता है, तो समझ में आता है हम क्या हैं। जो लोग बाहर जाते हैं, चाहे वो सिंगापुर में है, चाहे वो यूएस में है, चाहे कनाडा में है, तब उन्हें समझ में आता है कि इंडिया क्या है, इंडियन वैल्यूज़ क्या है। यहाँ रह के हमें इतने नज़दीक से दिखाई ही नहीं देता कि हम क्या हैं। शिव का एक स्वरूप है जिसे हम कहते हैं दक्षिणामूर्ति शिव। वो अल्टीमेट गुरु माने जाते हैं हमारी सभ्यता के अनुसार, कि सारा ब्रह्मांड का ज्ञान उन्होंने अपने वचनों में दिया था। हिज डायलॉग विद पार्वती, his consort, and his dialogues with सप्त ऋषिज, उनमें जो ज्ञान दिया था। सो ये जो, इसलिए विद्यालय के अंदर जो कि विद्या का मंदिर माना जाता है, वहाँ की शिव की स्तुति होना आज पहली बार हुआ है हमारे जीडी गोयनका स्कूल के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये रूप अल्टीमेट गुरु का रूप है। उस एनर्जी को अगर हम समझ पाएँ, क्योंकि शिव की एनर्जी है, हम इससे डरते हैं। आप ज़्यादातर देखें तो ब्रह्मा के केवल एक मंदिर है, क्योंकि क्रिएटर का हम ज़्यादा वैल्यू करते नहीं। घर में भी देखो तो माँ बाप का कोई नहीं ज़्यादा पूछता। पालन पोषण जो कर रहा है, राइट, माँ ज़्यादातर घरों में लगी होती है, क्रिएट ज़रूर कर देती है, लेकिन पालन पोषण, भरण पोषण पिता के थ्रू ज़्यादा आता है, तो उसका थोड़ा वैल्यू ज़्यादा होती है। और डिस्ट्रक्शन जो कर सकता है, उसके सबसे ज़्यादा मंदिर है, उससे सबसे ज़्यादा फियर है शिव, अल्टीमेट फ्री एनर्जी। लेकिन अगर हम जाने, बिना डिस्ट्रक्शन कुछ भी नया नहीं बन सकता।
कुछ भी नया बनाना है, चाहे हमें अपना ही रूप नया बनाना है, अपने आप को ही एक नया वर्जन देना है, यू नो, लाइक आई रिमेंबर इंडिका पहली बार आई थी तो सारी ख़राब हो रही थी रोड्स पे, and then came Indica version 2. It used to be V2 and I used to wonder what is V2, and then I got to know this is version 2. So हमें अपना version 2, 3, 4 भी अगर बनाना पड़ेगा तो पहले versions को destroy करना पड़ेगा, कभी कभी पूरी तरह से destroy करना पड़ता है. So without that anything new is not possible. That is the power of Shiv. I mean the energy. I'm not talking of, you know, क्योंकि जब हम बच्चों को बताते हैं तो ऑफ कोर्स हमें पर्सोनिफाई करना पड़ता है, कोई इमेज बनानी पड़ती है, इमेजरी के बिना बनता नहीं है. सबको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, बच्चों को तो खासकर नहीं आते, तो ये हमें बनाना पड़ता है. वो लोग जो थोड़े लोअर लेवल पे हैं उन्हें हमें शिव की एक मूर्ति देनी पड़ती है जो शिव को महसूस कर सके. उसे कोई रूप की ज़रूरत नहीं है. शिव की जटाएं हैं या नहीं हैं, गंगा है या नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, वो भीतर है. ये एनर्जी हम समझा पाए अपने बच्चों को. हमारे कल्चर की स्ट्रेंथ ये थी कि एजुकेशन सिस्टम जो घर से शुरू होता था उसमें दोनों चीज़ें थी. डिवाइन प्रैक्टिसेस बहुत इम्पॉर्टेंट थी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत इम्पॉर्टेंट थी. आज वो खोती जा रही हैं. इस असेंबली से बच्चे केवल यही लेकर आए हैं, एक ही मैसेज था जो आखिर में उन्होंने समअप किया कि ड्यूटी है हम एल्डर्स की कि हमें जो अपने सीनियर से मिला है, अपने पहले पूर्वजों से हमें जो मिला है वो हम उसी शुद्ध रूप में आगे दे पाएँ. कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम किसी धर्म के हैं, क्योंकि रिलीजन कोई भी हो, मैसेज वही है. इट्स अ मैसेज ऑफ लव, इट्स अ मैसेज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड द अदर्स. इट्स अ मैसेज ऑफ नॉट टेकिंग एज मच एज वी गिव. बीच में आई बात कि हमें देना है जितना हम दे सकें. तो ये अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डे टू डे लाइफ में सिखाएं तो बहुत अच्छा रहेगा. चीज़ें बदल रही हैं, सॉरी टू से, बट कहीं से हो रहा था तो मैं आई डोंट माइंड माई सेइंग, बट मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि नहीं कहूँगी तो मुझे खुद बुरा लगेगा. आई एम एन एडुकेटर. यहाँ पर स्तुति हो रही थी, शिव स्तुति है या जो भी स्तुतियाँ अलग अलग हो रही थी, और कहीं से पीछे सीटी की आवाज़ आ रही थी. इतना विवेक हमें होना पड़ेगा कि सीटी कहाँ बजाई जाती है और ताली कहाँ बजाई जाती है. यही विवेक है जो हमें भीतर भी लाना है और आगे भी देना है. किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन मेरा ड्यूटी है कहना. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड आई थिंक ऑल आवर किड्स डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. Can I have a word with everyone? Children will be there in the basketball court outside. They'll line up there. The placards are already